Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs, students of class 12th grade to today's class. And in today's class, I am starting a new unit. That is unit number 3. So today we are going to start unit number 3, that is enterprise marketing. And we are going to take up first point of this unit, and that is what is the goal of the business. So we have recently finished unit 2 and today we are starting unit number 3, that is enterprise marketing, and it is our first class from this unit. और बच्चों आज की क्लास का टाइटल है what is the goal of the business. So let's take up all the pointers and go through our journey that and understand what are the goals of the business. So let's start. So these are the points under discussion. First point is what is the goal of business? What is goal setting? Why is goal setting important? Goals need action. How do we know we are setting the right business goals? And last but not the least, what are SMART goals? So SMART goals, SMART is an abbreviation which stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. And time bound. So let's take up all these pointers one by one. What is the goal of the business? The fundamental goal of business is to make a profit. Always remember this. आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है what is the goal of the business, and it is always to earn profits. This can manifest not only in monetary terms but also in improved customer relations and goodwill. इसको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही हमने ऑब्जर्व नहीं करना है, हमने ये भी देखना है कि कैसे हम उस मॉनेटरी टर्म्स को इम्प्रूव कर रहे हैं by providing good services and making good relationship with the customers. It is also a profit when customers they leave other companies aside and come to our company to purchase goods. It's also a profit, it's also a sort of profit. It encompasses the idea of creating value that benefits both the business and the stakeholders. और इस प्रकार बिजनेस चलाने से ना कि सिर्फ बिजनेस को बेनिफिट होता है बट जो लोग बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं ऑल द स्टेक होल्डर्स उनको ये फायदा होता है. बच्चों आप ये अब तक तो जान ही गए होंगे कि जो कस्टमर्स हैं हाउ इम्पोर्टेंट देयर रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस. तो जब भी हम कस्टमर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इफ द कस्टमर्स आर हैप्पी, if the customers are satisfied, if the customers are using our product again and again and giving us repeated sales. अगर वो 4 लोगों के पास जाके हमारे प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है they are liking us, they are liking our products and services, and the company is earning money. So collaboratively all these things tells us that the company is having profit. So the goal of the business is to earn profit, या तो वो monetary forms में plus monetary forms के साथ साथ providing good products and services to the customers again and again. What is goal setting? Very very important. गोल अचीव करना तो बच्चों एक अलग बात है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इज सेटिंग ऑफ द गोल, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट. Goal setting involves establishing short or long term objectives with defined deadlines and quantifiable measures. बच्चों जब भी आपने गोल की बात करनी है, गोल सेटिंग की बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है और वो है क्लैरिटी. क्लैरिटी
अगर आपको काम में क्लैरिटी नहीं है, एंड इफ यू आर डाउटफुल ऑन व्हाट यू आर डूइंग, तो आप ये मान के चलिए कि आपका गोल आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। क्लैरिटी से क्या आती है, आपका जो भी एफर्ट्स होते हैं, दे स्टार्ट शाइनिंग, दे स्टार्ट हेल्पिंग द गोल टू गेट अचीव्ड। गोल तभी अचीव किया जा सकता है जब जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो 100% उसी जगह पे लग रहे हैं जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं। तो गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो जरूर हैं, पर इनकी डेडलाइंस भी डिफाइन करनी जरूरी है कि भैया 6 महीने में मैं शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लूंगा, 1 साल में कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप डेडलाइंस गोल के साथ रखेंगे, गोल विल एक्चुअली बिकम अ गोल। अदरवाइज विदाउट अ डेडलाइन गोल इज अ विश। सोचने में क्या है, कोई कुछ भी सोच सकता है, पर आप अगर उसे एक डेडलाइन देते हैं कि भाई इस फला फला स्पेसिफिक टाइम तक मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा, शॉर्ट टर्म को, उसके बाद मिड टर्म को, उसके बाद लॉन्ग टर्म को, तो आप हमेशा देखेंगे कि आपके गोल्स आप अचीव कर पा रहे हैं। और क्वांटिफाइएबल मेजर्स, आप नंबर के अंदर भी उसे अचीव कर पा रहे हैं। क्वालिटी में तो करिए, क्वांटिफाइबल मेजर्स भी, जो भी आपने अमाउंट या क्वांटिटी सोची थी वो आप उस टाइम तक अचीव कर पा रहे हैं। अगर उतना अचीव नहीं कर पा रहे तो 80% तो आपने अचीव कर ही लिया। तो यू नीड टू कीप अ स्पेसिफिक अमाउंट अचीव्ड एट दैट टाइम, जो आपने एक स्पेसिफिक डेडलाइन अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखी। सेकेंड पॉइंट, it is a structured approach to defining what the business aims to achieve and the steps required to reach those objectives. और बच्चों ये हैफेजर्ड अप्रोच नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तरीका है, स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक क्रोनोलॉजी है, स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड सो ऑन। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक तरीका है इसे अचीव करने। ये नहीं गोल बनाया, डेट सेट कर दी, डिफाइन कर दिया ये शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म है, एंड यू स्टार्टेड वर्क। यू हैव टू प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजी। पहले क्या, शॉर्ट टर्म गोल को भी पार्ट्स में डिवाइड की। एक बड़ी प्रॉब्लम को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलेस्ट पार्ट्स। और उन स्मॉलेस्ट पार्ट्स को जब आप एक एक करके अचीव करते हैं, तो आपका स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, और फिर स्टेप 3, 4, 5, और आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाता है। और इसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, यही तरीका है काम करने का। क्यों ऐसा होता है, छोटी सी कंपनी स्टार्ट होती है एंड विद इन 10-15 ईयर्स वो मल्टीनेशनल बन जाती है? बिकॉज दे फोकस ऑन डिटेल्स, दे राइट डाउन एवरीथिंग, they write down the things they are doing and they write down the things they are not doing। और जब वो दोनों लिस्ट को कंपेयर करते हैं, द थिंग्स दे आर डूइंग एंड द थिंग्स दे आर नॉट डूइंग, तो कई बार क्या होता है, जो चीजें आप नहीं भी कर रहे होते, कई बार उनको भी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द इनिशिएशन ऑफ अचीविंग गोल्स। सो व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग is a structured way of achieving the goal, structured। now why is goal setting important? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। गोल तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर उसे सेट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोल को आप सेट नहीं करेंगे तो आप कभी गोल अचीव नहीं कर पाए। तो पॉइंट नंबर 1, गोल सेटिंग इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस एंड सक्सेस इन बिजनेस एंडेवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मिले और सक्सेस मिले, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट गोल्स। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ विजन कि भैया आप चाहते क्या है। आप सिर्फ टाइम तो पास नहीं कर रहे,
अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये गोल्स है आपके कि आपको इनिशियली 15 से 20 घंटे रोज काम करना है, काम आप कर रहे हैं 15 से 20 मिनट, तो आप गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाए। आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, यू कैन नॉट बीट अ पर्सन बाय वर्किंग 5 आवर्स हु इज वर्किंग 15 आवर्स अ डे। अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस, और मैं क्यों अचीव करना चाहता हूं, व्हाई आई वांट टू अचीव इट, एंड अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ गोल अचीवमेंट, और एक होप करना कि मैं गोल्स को अचीव कर लूंगा। तो बच्चों, जब आप इतनी शिद्दत से इतनी डिटेल्स में किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, तो बट ऑब्वियस है द गोल्स बिकम्स अचीवेबल। आप उस टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं, बट यस, डिटेलिंग एंड वर्किंग ऑन अचीविंग दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल। सिर्फ सोचने से नहीं हो। थर्ड पॉइंट, इट अलाउज businesses to be proactive rather than reactive in their strategies। अब जो बिजनेस अगर प्रोएक्टिव नहीं है और बिजनेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब है जो व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, या तो उसमें बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है, और या फिर उसमें वो एबिलिटीज, वो स्किल्स नहीं है जिससे वो बिजनेस चला सके। क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा बिजनेस चलाने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ता है, रिएक्टिव नहीं होना पड़ता। अगर आप रिएक्टिव होकर बिजनेस चलाएंगे तो आप बिजनेस को एक इलाके से बाहर नहीं लेके जा पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को स्टेट के बाहर, उसके बाद कंट्री, पूरी कंट्री में, फिर कंट्री के बाहर लेके जाए, तो देयर नीड्स टू बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आने वाले चेंजेस क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, किस टाइप की मशीनरी चाहिए, या किस प्रकार के सर्विसेज में अपग्रेडेशन चाहिए। अब आपके पास फॉर एग्जांपल लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल 20, और आप उन्हीं से बिजनेस लाते रहते, तो आप प्रोएक्टिव काम नहीं कर रहे, आप बहुत रिएक्टिव काम कर रहे हो। बट यस, इफ यू आर हैविंग 500 क्लाइंट्स विद यू, and you are catering your services or products to every one of them, तो उस लेवल पर आप प्रोएक्टिव काम कर रहे हो। अदरवाइज यू आर वर्किंग ऑन रिएक्टिव यू नो वे ऑफ वर्किंग। अब मैं रिएक्टिव इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 20 क्लाइंट है, और 20 क्लाइंट में से अगर आपके 5 क्लाइंट साथ काम करने से मना कर देते हैं, तो आपके पास मुट्ठी भर क्लाइंट्स रह गए। So how you are going to see, the horizon, how you're going to fulfill your vision, उसके लिए proactive, पहले से prepared होना। Proactive is, being prepared earlier. Beforehand preparation is very, very important. Proactive is beforehand preparation. पहले से तैयार रहना। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज गोल सेटिंग, व्हाई इज गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट। अब मैं लेता हूं फोर्थ पॉइंट, गोल्स नीड एक्शन। और बच्चों याद रखिएगा हमेशा, आप कई बार पहले भी मेरे सेशंस में बात सुन चुके होंगे, एक्शन इज द शॉर्टेस्ट आंसर। किसी भी काम के ऊपर एक्शन लेना सबसे छोटा आंसर है। फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, सेटिंग गोल्स इज जस्ट द इनिशियल स्टेप, एक्शन इज असेंशियल फॉर गोल अटेनमेंट। अगर आपके पास सिर्फ बातें ही हैं और आप मेहनत नहीं कर सकते, एक्शन इज व्हाट यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स। और जब आप एक्शन लेते हैं तो क्या होता है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स कैसे होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आर इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव मिले तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव मिले तो आपने चेक करना है कि आप में कमी क्या रह गई है। और रिजल्ट्स मिलने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपका बनता है बिलीफ सिस्टम। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, नेगेटिव आ रहे हैं तब भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, यार एटलीस्ट मैं एक्शंस तो ले रहा हूं। नेगेटिव आ रहे हैं
कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, मुझे इन्हें बहुत देर तक नेगेटिव नहीं रखना है। और बिलीफ से क्या बनेगा, फिर आपका पोटेंशियल बन जाएगा। तो आपकी पूरी पोटेंशियल साइकिल बन जाएगी। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे बनेगी। ये पोटेंशियल साइकिल आपकी कैसे बनेगी, पहले आपका पोटेंशियल होगा, उसके बेसिस पर आप एक्शंस लेंगे, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स के बेसिस पे आपका बिलीफ बनेगा, और बिलीफ के बेसिस पर आप पोटेंशियल को देख पाएंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो इसे कहते हैं पोटेंशियल साइकिल। Business must actively work towards their goals to ensure progress and success. तो आपको काम तो करना ही है, नेगेटिव आया तब भी करना है, पॉजिटिव आया तब भी करना है। नेगेटिव आएगा तो आपको रियलाइजेशन होगा, पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब आपका काम करने का तरीका सही है, एंड यू आर मूविंग ऑन, एंड बोथ द एक्सपीरियंसेस आर नेसेसरी, एंड एक्सपीरियंस कम्स एट अ कॉस्ट। तो दैट्स व्हाई आप देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग होती है, किनकी, एंटरप्रेन्योर्स की, किनकी, पीपल दोज हु आर डूइंग बिजनेस, दे हैव टू बी ऑन टोज, वो रिलैक्स नहीं हो सकते। कौन, एंटरप्रेन्योर। सो गोल्स कैन बी फुलफिल्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्शन। पॉइंट नंबर 5, हाउ डू वी नो वी आर सेटिंग द राइट बिजनेस गोल्स। कैसे हमें पता चले कि हम राइट बिजनेस गोल्स को सेट कर रहे हैं। First point, to set the right business goals, entrepreneurs must be, जो goals हैं, they must be relevant, measurable, achievable, relevant, time bound and time based. Specific, measurable, attainable, relevant and time bound. देखिए बच्चों, goals क्या है, अगर आप एक ऐसा गोल रख लेते हैं जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आप मान के चलिए इतनी ज्यादा जो नेगेटिव आउटकम है आपके एफर्ट्स की, फिर वो आपके गोल को अचीव नहीं होने देंगे। तो हमेशा आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए, पता है स्पेसिफिक गोल्स हैं, मैं इतना गोल अचीव कर सकता हूँ इस टाइम पर, इसे मैं मेजर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम माई बिजनेस आई हैव टू अर्न 3 लाख रुपीज अ मंथ। तो 10 दिन में मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। पर अगर मैं इसी अमाउंट को 3 करोड़ कर दूंगा, तो इट इज नॉट मेजरेबल एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट मेजरेबल। तो पहले स्पेसिफिक हो अमाउंट, फिर मेजरेबल हो, फिर अचीवेबल हो, आप इसे अचीव भी कर पाए, देख भी पाए मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, फिर रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट ना हो कुछ, मतलब इतना बड़ा गोल ना बना ले कि जिसे आप सिर्फ सोचते हुए भी घबराए। क्योंकि यहां पर ना कुछ प्रेग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए कि भैया ये 2 साल में कर लूंगा, 1.5 साल में कर लूंगा, या 2.5 साल में कर लूंगा। ये नहीं गोल बना हुआ है, आप गोल पे काम भी कर रहे हैं, और गोल इतना बड़ा है कि शायद अगले 500 साल में भी अचीव ना कर। Are you getting it? So that's why there needs to be a smart goal. Second point, relevance ensures that goals are profitable and beneficial in some way. Measurability provides a mean to track progress and outcomes. तो रेलेवेंस जो हो गया जो गोल में, वो बताता है आपको कि ये गोल जो आप अचीव करने वाले हैं, ये प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, या प्रॉफिटेबल नहीं है और बेनिफिशियल नहीं है। मेजरेबिलिटी का मतलब है कि यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द गोल्स एंड आउटकम्स। अचीवेबिलिटी एंश्योर्स गोल्स आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों, कि जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो रियलिस्टिक भी है और अटेनेबल भी है। Relevance ensures goal align with current business conditions, and time-bound elements provide the sense of urgency and accountability. और बच्चों रेलेवेंस का एक और मतलब है, ये बताता है कि जो गोल है आपका वो अलाइंड है विद द करंट बिजनेस कंडीशंस। अभी आपके बिजनेस में कुछ भी नहीं है, आपका छोटा सा बिजनेस है, और आप बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि मैं 1 करोड़ का निकाल दूंगा, वो 5 करोड़ का कर लूंगा, 10 करोड़ का कर लूंगा।
इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। आपको रेलेवेंट चीजें करनी, एटलीस्ट प्रैक्टिकलिटी में आप एक स्मॉल अमाउंट तो देख लें, उसके बाद आप एक बड़े अमाउंट की बात करें। सो अ गोल नीड्स टू बी स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. What are SMART goals? SMART goals are specific, measurable, achievable, relevant, time bound and time based. Time bound and time based are same because S से हो गया specific, M से हो गया measurable, A से हो गया achievable, R से हो गया relevant and T से हो गया time based and time bound. Specific goals are well defined and focused, making them easier to work towards. बच्चों जब आपके गोल स्पेसिफिक होंगे और वेल डिफाइंड होंगे, स्पेसिफिक गोल्स एंड दे आर वेल डिफाइंड, तो आप इजीली उन पर फोकस कर पाएंगे और इजीली उनकी तरफ काम कर पाएंगे. Measurable goals have quantifiable outcomes that allow tracking progress. जो गोल्स आप मेजर कर सकते हैं उनकी जो आउटकम है वो क्वांटिफाइबल हो, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं. Achievable goals are realistic goals within reach. Relevant goals are aligned with business conditions and objectives. तो मतलब आपने ऐसे गोल्स देखने हैं जो आपकी विद इन रीच हो और जिनको आप विद बिट ऑफ एफर्ट्स आपने अचीव कर सकते. नहीं तो क्या होगा, आप ओवरबर्डन होके ओवरलोड लेके आप खुद को भी खराब कर लेंगे और अपने बिजनेस को भी खराब कर. और अगर आप गोल फॉर्म करने की टेक्निक को सीख जाते हैं तो आई एश्योर यू, even in your personal life, professional life, and once you become an entrepreneur, it is always going to work in your favor. और टाइम बाउंड आप जानते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम रख लीजिए कि जब तक आप इस गोल को अचीव कर पाए. अगर आपने 80% भी उसके टाइम लाइन तक या टाइम बेस तक या टाइम बाउंड करके उसे अचीव कर लिया, इट इज योर विक्ट्री, इट इज योर विक्ट्री. एक बार थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल गोल्स क्या होते हैं, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं. Specific goals are clear and focused, such as aiming to obtain certain value of corporate clients in a specific market. एक मार्केट है, उसमें आप चाहते हैं कि 2 साल के अंदर मेरे पास एटलीस्ट 50 से 60 क्लाइंट्स और आप वो अचीव करना चाहते हैं. तो स्पेसिफिक गोल. आप एक है जी मेरे सारी मार्केट ही मेरा क्लाइंट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं. रादर देन वेग गोल्स लाइक गेट मोर बिजनेस, ज्यादा बिजनेस लाना एक वेग गोल हो सकता है, बट यस 50 to 60 clients can be, specific. Measurable. Measurable goals have concrete numbers. Very very important बच्चों, जो measurable goals है ये वो goals है जिन्हें आप एटलीस्ट measure कर सकते हैं. तो they have concrete number or metrics attached to them, allowing business to track progress and assess success objectively. ताकि आपका बिजनेस प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और जो सक्सेस है उसे ऑब्जेक्टिवली एक्सेस कर सके. मतलब मीन्स उसे आपको ये पता चल जाए कि जो भी मैं काम कर रहा हूं मुझे उसमें इतने अमाउंट का सक्सेस तो मिल ही जाए. आर वी गेटिंग? जो मैंने मेजर किया, इट कैन बी एनी एक्स वैल्यू. numbers are crucial in determining if the goals are being achieved as planned. नंबर्स रखने बहुत जरूरी है, नंबर्स रखने बहुत जरूरी है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको इसको इजी वे बताता हूँ. नंबर्स आर crucial in determining if the goals are being achieved as planned. So मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, whatsoever gets measured gets done. जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं उसे आप पूरा भी कर सकते हैं. अब जैसे मैं बुक्स कैसे पढ़ता हूं, मैं हर बुक के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं, तो हर किताब के ऊपर मैं 30-30 मिनट्स का टाइमर लगा. तो एक किताब को मैं 30 मिनट पढ़ूंगा तो लगभग 7 से 8 पेज में पढ़ता हूँ 30 मिनट के अंदर. और अगर एक बुक के अंदर से फॉर एग्जाम्पल
200 पेजेस हैं, तो मुझे ये भी पता होता है कि विद इन दीज मेनी डेज आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस बुक। पर अब मैं ये बना लूं, बस मैं थोड़ी थोड़ी किताब रोज पढ़ूंगा, एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, दूसरा पढ़ रहा हूँ, 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ। बट वेन आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड द नंबर, 30 मिनट्स तो पढ़ना ही, तो उस 30 मिनट के अंदर मैं 7 से कई बुक्स इजियर होती है तो 10 भी पढ़ लेता हूँ। तो इतना जब मैं अपने आप को स्पेसिफिक रखता हूँ, तो आई अचीव अ गोल ऑफ फिनिशिंग 2 बुक्स अ मंथ, विच इज अराउंड 24 बुक्स a year, which is around 240 books in 10 years. Are you getting it? So when you start measuring the things, you start achieving them as well. Next is attainable. Goals should be realistic and attainable. Considering the resources, skills, and capabilities of the business, unrealistic goal can lead to frustration and demotivation. और बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें करना, it leads to frustration and demotivation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि जितना आप स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। Relevant and time bound. Goals need to be relevant to the business overall objectives and current market conditions. They should contribute to the growth and the success of the business in a meaningful way. Time bound goals have a specified deadline or time frame for completion. जो बच्चों टाइम देना है किसी भी गोल को, एक्चुअली एक टाइम फ्रेम देना है कंप्लीशन के लिए, एक डेडलाइन और टाइम फ्रेम देना है कंप्लीशन के लिए। एडिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फोकस टू गोल सेटिंग एफर्ट्स। अब आप अर्जेंसी रख रहे हैं, अब आपको ये पता है कि भैया मुझे इस महीने तक ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लेना है, और नहीं कर रहा हूं तो माय बिजनेस इज गोइंग टू गेट लॉस्ट। तो जब आपका बिजनेस जा रहा है जस्ट बिकॉज आप आलसी हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर गोल सेटिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, एडिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फोकस टू गोल सेटिंग एफर्ट्स। Time bound goal should have specified deadlines or time frames for completion. This time bound element adds a sense of urgency and focus to goal setting efforts. It helps in prioritizing tasks. कितना इंपॉर्टेंट, अगर मुझे पता ही नहीं कि लाइफ में मुझे कहां जाना, तो एनी रोड कैन टेक मी एनीवेयर। सो आप टाइम बाउंड होकर क्या करते हैं, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं इफेक्टिवली। एंड अबव ऑल, ट्रैकिंग प्रोग्रेस within a defined time frame. Setting deadlines encourages accountability and motivates teams to work efficiently towards achieving the desired outcomes within the stipulated time frame. तो बच्चों, अगर आपके पास आपके गोल्स टाइम बाउंड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, मेजरेबल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, अटेनेबल नहीं है, क्योंकि ना ये गलतियां सब करते हैं। जब इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, पता नहीं बिजनेस में कितना पैसा है। बट दैट मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है बच्चों, कि लाखों करोड़ों रुपया काम में लगा दिया, एंड विद इन 1 ईयर दे यू कम बैक ऑन ट्रैक। मतलब उन्होंने क्या सोच कितना पैसा कहीं से लेके लगाया, और उसके बाद काम नहीं चला, एंड दे वर हाईली रिप्यूटेड बिजनेसमैन। क्योंकि गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप छोटे गोल्स तो अचीव कर लो, फिर आप बड़े गोल सेट करो। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो पहला जो पॉइंट है हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग का, वो हमें यही सिखाता है कि गोल सेटिंग इन द बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You cannot even think about a business without setting goals in the business. So goal setting is extremely important. तो बच्चों, आज के सेशन में हमने 6 पॉइंटर्स लिए। पहला पॉइंट था व्हाट इज द गोल ऑफ द बिजनेस। सेकंड पॉइंट था
व्हाट इज गोल सेटिंग, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये अलग अलग टॉपिक्स है, गोल सेटिंग एक अलग टॉपिक है कंप्लीटली। व्हाई इज गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट? गोल्स नीड एक्शन। हाउ डू वी नो वी आर सेटिंग द राइट बिजनेस गोल्स, एंड व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखिए याद रखिएगा, मैं कई बार ना कई पॉइंट्स को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप मुझे बार बार सुनेंगे ना तो आपको सुनने से याद हो जाएगा। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम। और बच्चों, इट हैज ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास, और ये है हमारा रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर लाइकिंग इट। मैंने पहले पॉइंट पे दिया है आपको सिनॉप्सिस आज के चैप्टर का, vocabulary from the session, 10 short questions from the session, their answers, top 10 objective type questions along with answers, 10 questions objective type along with answers, true and false statements from the session, and fill in the blanks from the session. बच्चों, वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। आप हमारा एक क्लास करिए, रिग्रेस प्रैक्टिस सेक्शन करिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर जॉइनिंग माय क्लासेस रेगुलरली, क्योंकि बच्चों आप ऑब्जर्व करते होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आर वेरी रेयर, and Mavericks India Solution, the company which we are running, you know, उसका गोल ही ये है that with Mavericks India you will gain knowledge, you will gain something। तो हम हमेशा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स आपको देते रहेंगे। आने वाले वक्त में वी आर आल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड यू विल सी फॉर योरसेल्फ दैट how much you will gain from our regular classes and sessions. So बच्चों, meet you next week, next time in the next class. Till then, bye bye for now. God bless you all. And do not forget to subscribe our another channel which is with the same name, Mavericks India Solution. आपने इस लोगों को ढूंढना है तो आपको मेरी ये भी क्लासेस मिलेंगी which are Mavericks India Solution ABC classes and Mavericks India Solution, जो हमारा मेन चैनल है जिस पर हम अपने मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, generally for the people to achieve their goals fast. So until meet next time, bye bye for now. God bless you all, and always remember, with Mavericks India Solution, you'll always gain.